I was 21 when I got married. My husband Kamal was a quiet, kind, and faithful man. He never raised his voice, not even when he had an opportunity to, whenever life got him down. And we didn't have much, we were very poor, but we had lots of dreams. And together we built a home and raised 2 sons and survived on patience and love. Kamal sold fruits on the streets of Sylhet. Every morning he would push a neatly stacked wooden cart full of guavas, mangoes, jackfruits, and bananas and call out to passers-by. He stood in all types of weather, sun, rain, winter chill, with barely anything to keep him together. And he did it all so that he could provide for his sons, so that they could go to school, so that they could eat properly, wear clean, fresh clothes. They even used the same pairs of slippers for years so that their kids would have brand new shoes. And she said, we thought that was love. Sacrifice without noise, without expectation or applause. But eventually, they were successful in their endeavors. One of their sons moved to London and one of them moved to Canada. And Kamal had paid for them in monthly installments so that he could afford it. And he was so proud, and he was wishing he could save the extra few money so that his kids could eat. And at the airport, she cried like every mother would. She was proud. And she thought one day they'll return and that they will take care of them like they took care of them. But they never did. At first they called, and then there were fewer calls, and then no calls at all. We waited during Eid, thinking that maybe they would call. But Eid came and went, and so did their hope. And then Kamal got sick. We found out too late that it was cancer. It moved fast, faster than our bodies or wallets could handle. He lost weight, stopped eating, and could barely move. But he still whispered du'as at night for his kids. He never once asked why his sons hadn't called, and maybe he already knew why. He died on a Thursday afternoon. There was no hospital bed, no medicine, just our small home, a neighbor, and an imam. No sons, no farewell, just a janazah carried out by strangers while I stood alone beside his grave. They didn't come, not for the funeral, not for me, not even a phone call. Months later, a letter arrived, and not from them, but from a lawyer. They wanted a share of the property, the house, the land, their inheritance. My hand shook as I read the letter. My sons, who hadn't asked how I was surviving, who didn't send a single bit of money for their father's medication, who didn't even lift a phone to say inna lillahi, now they wanted their share. Yes, maybe the law says it's theirs, but what about love? What about duty? What about the hands that fed them, the feet that walked them to school, the man who sold mangoes under the burning sun just so they could fly away? I tore the letter that night, and I sat in the dark alone and cried quietly, not out of anger, but out of heartbreak. We sold fruit for a living. We built our lives with sweat and prayers, from peeling oranges under the rain to stacking pineapples under a dusty sky. We spent our lives serving sweetness to others, but the fruit we had planted, our own children, did not ripen to be sweet. They grew far, far away, and they forgot the tree that bore them. And now, I live in an old home, one broken window with a leaky roof and a grave nearby where Kamal sleeps peacefully. I still talk to him. I tell him about the neighbors, about the wind, about how quiet it's gotten. And sometimes I wonder to myself, was all the sacrifice worth it? Welcome to the podcast, guys. This is the Garden of Truth podcast. This is the season finale. Today I'm joined by none other than Hasib Ghori, who you've seen on episodes before, and a new person, Sheikh Fassi, my good friend. Thank you. How are you guys doing? Very heavy start to the episode. Yeah. What do you guys think? So this episode is going to be about parents and kids, our relationships in the South Asian community, how they develop and how the expectations that kids have from their parents and vice versa, what parents expect from their kids when they get older. This, of course, is a very heartbreaking story. Nobody wants to die alone without their sons, especially when they've given their whole life to them. What's your take on it, Fassi? Hi. Yeah, welcome, first of all. Everybody say hi to Fassi in the comments. I think that was a really emotional story. It was really heavy. I think कि आजकल जो है वो पेरेंट्स का रुतबा, पेरेंट्स की वो फीलिंग और वो एम्पैथी जो है वो ना सिर्फ एक रिलेशनशिप लेवल के ऊपर चली गई है, लेकिन ऑन अ ग्लोबल लेवल
It's हाँ, absent. और ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक बन गए बच्चे, very you think? अच्छा, individualistic. अपनी जिंदगी जीनी है। Yeah, not just बच्चे. Hmm. I think the motions of life, they've made it more about gaining or ये जिस तरह बात की, Maximizing yeah, your, maximizing हाँ, and everything, and they don't care about emotion. Most people, I mean, around me, as I see it on a daily basis, they don't care about emotion. They don't care about parents. They don't care about their emotional partners, as I would yeah. say. क्योंकि parents आपके emotional partners हाँ, of होते हैं. course, Yeah. हाँ। तो Emotions उनसे ही तो develop हुए हैं। I mean, बिल्कुल, environment के बिल्कुल, through, बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, जैसे the way that you are in the world, वो parents की वजह से है। मतलब बिल्कुल, कि हाँ, बिल्कुल, या जो भी आपके, growing up, जो भी आपका बिल्कुल। I care कर completely रहा था। agree कि आप उनसे ही सीखते हो। वो आपकी environment होते हैं for a majority of your life. तो आप उनसे सीखते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, ये सब कुछ। और आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि वो इमोशनल कनेक्शन जो है वो दुनिया भर में जा रही है। प्लस वो एक रिलायंस जो पहले होती थी आपके पेरेंट्स के अंदर, वो अब थोड़ी सी चेंज होती जा रही है विद द एडवेंट ऑफ एआई एंड अब जो है वो कि इंटरनेट आ चुका है ये आई थिंक वगैरह। वो आई थोड़ा सा थिंक सोशल ब्रॉडर मीडिया, इशू है, हाँ, या नो कि आई, बच्चों को हाँ, आजकल बाहर जाके एडवर्सिटी की जरूरत नहीं है। मतलब हम लोग तो मजबूर थे कि या हम लोग को बाहर एवरीथिंग जाके, इज देयर। हाँ, एग्जैक्टली, और जिस तरीके से वो बोलना चाहते हैं, they can tailor create that so that they don't have to feel uncomfortable। मतलब एग्जैक्टली। कि मतलब हम लोग बाहर जाते थे, ऐसा कहते थे, किसी ने गाली मारनी है, किसी ने कोई नाम बुलाना है, you just have to deal with that and that grows you as a person, I think। मुझे तो लगता है कि उससे बेहतरी होती है बंदे की, कि एग्जैक्टली। you find out कि जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए। and like further to your point कि आजकल like distance हो गया है इतना ज़्यादा inner emotion से लोगों का, कि like ये लोग recognize ही नहीं कर सकते अपने आप को। सारे collective बन चुका है, Exactly. online सारा कुछ हो चुका है, Exactly. so आपको क्या लगता है? I think this is a serious issue in our community, in our Asian community. You mean AI or you mean parents का? In all Asians, because पहले क्या था, पहले ये था कि लोग पेरेंट्स जो थे बच्चों के साथ रहते थे, बच्चों को टाइम देते थे, कोई ये मोबाइल्स का टाइम नहीं था, ऑनलाइन टाइम नहीं था। अब ये है कि वो गैप आ रहा है, जो पहले परवरिश जिसे कहते हैं उसमें थोड़ा सा गैप आ गया है। तो उस हाँ, वजह जैसे से कि भी कोई अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन अगर अपने पेरेंट्स के साथ आपने करनी है, कोई चीज़ कहनी है, आजकल तो बस फोन पे बैठ जाओ, ओपन है, ओपन इकट्ठे बिल्कुल, बैठे हो हाँ, लेकिन फोन पे बैठे हो, एग्जैक्टली, ये नहीं कि आपको बात करनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि और ऐसे कोई ही चीज़ नहीं है वहाँ ऐसे पे। ही है। हाँ, और ये था कि एशियन कम्युनिटी जो है, आपको पता है कि जॉइंट सिस्टम फैमिली होता है, तो वो भी हमें बहुत चीज़ें सिखाता है कि जुड़ के रहना है। हाँ। यहाँ पे बाहर की कंट्रीज में ऐसा नहीं है। वैसे इस्लाम हमारा कम्युनिटी रिलीजन बिल्कुल बेस्ड बिल्कुल वो रिलीजन है, हमें हाँ। यही सिखाता है, बिल्कुल मैं ऐसा ही है। एक चीज इसके ऊपर ऐड करना जी, चाहता जी। हूँ। आपने बिल्कुल सही बात की कि इधर जो है वो चीज सिखाई नहीं जाती, लेकिन इधर फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा रिस्पेक्ट और क्योंकि वो एक स्टेज पे आके वो बच्चे पेरेंट्स से पहले ही अलग हो जाते हैं, फिर उनको क्रिसमस पे या आई थिंक मुझे किसी लगता है फेस्टिवल पे कि मिलते हैं। पेरेंट्स भी इंडिविजुअलिस्टिक लाइव्स यहाँ पे जीते हैं, तो इन टर्न पे बच्चे भी करते हैं, तो उनका कोई क्लैश नहीं होता, क्योंकि हाँ, उनका ये भी सेम माइंडसेट होता है। एशियन बच्चों का और एशियन पेरेंट्स का माइंडसेट डिफरेंट है, कि Mindset वो है कम्युनिटी बेस्ड, और बच्चे आजकल क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इज वेस्टर्नाइज्ड है, ऐसे ही है। इवन इवन तो वो बच्चा, इंडिविजुअलिस्टिक पे रहते हाँ, हैं। पहले हाँ, बच्चा रो रहा था या कुछ कर रहा था तो माँ खेलने लग गई उसके हाँ, साथ। अब क्या है, मोबाइल पकड़ा देते हैं, बगैर पोएम लगा बगैर के, देते हैं, कोको और मेलन बच्चे डाल दो, बिल्कुल यू बिल्कुल वही ना, तो नो। बच्चे को परवाह ही नहीं है। तो हाँ, बच्चा ऐसे ग्रो कर जाता है, और कल आके जब बड़ा होता है तो उसको फीलिंग्स नहीं होती वो मदर और पेरेंट्स के साथ, आई मीन एक और फीलिंग्स नहीं चीज होती। मैं जी इसके जी। अंदर कहना चाहता हूँ कि वैल्यूएबल टाइम की, वैल्यूएबल टाइम आप कैसे स्पेंड करते हैं क्वालिटी टाइम, हाँ, हाँ, बिल्कुल quality बिल्कुल। time। क्योंकि आपको रियलाइज करना चाहिए कि आप जो भी काम करें, जैसे आई थिंक कि काफी ज्यादा लोग रिलेट करेंगे इस स्टोरी के साथ जो आपने अभी बताई है। I think a lot of people have this thing with their parents' work. They do a lot of stuff. They make a lot of sacrifices, but yeah। they don't have that openness and communication with their children. ये So भी their साउथ children एशियन are कम्युनिटी में इशू है, we'll touch on that later guys, we'll touch on that later, but yeah, exactly. So continue. so the children don't have that emotional intelligence, that empathy with their parents. The children need to know what their parents are doing, what they did, what they suffered, so सही they बात। can overcome that and grow forward. Like, so I think that once that is complete,
then I like there would be a understanding, even if it's individualistic. I think there would be an understanding between the कि तुम अपनी children. जिंदगी जियो, मैं अपनी जी रहा हूँ, हाँ, लेकिन हम लोग इकट्ठे जी रहे हैं लेकिन उसको, जब you ये know? चीज होती है कि आप कुछ बताते ही नहीं है, आपकी ओपननेस नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो फिर तो आपके बच्चे भी नहीं समझ सकते बिल्कुल, कि आप उन्होंने- बेशक कैसे उनकी, समझेंगे? यहाँ से बेशक आप उनकी नीड्स पूरी करो, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही उन्हें जो उन्हें मिलनी चाहिए। हाँ, feeling, इमोशनल, emotions, हाँ, yes, वो वो चीज़ मिस हो ये रही बहुत लैकिंग है हमारी है। कम्युनिटी है में। आई थिंक इट्स आई मीन बहुत ज़्यादा फैक्टर है इसमें, कलोनियलिज्म है कि एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी है, लोग ज़्यादा पास हो गए हैं तो कि हम लोग दूर दूर और रहते ये हैं। सिखाया भी जाता है हमारे वहाँ पे। आपको पता ही है कि कोई पास अवे हो जाता है जब, तो दूर दूर से लोग आते हैं, हाँ, खुद आते हैं, ये नहीं कि फोन करके फोन WhatsApp करके नहीं नहीं, आता, वहाँ वो आके जनाजा पे जनाजा आना पढ़ते हैं, आना, शरीक हाँ, होते हैं। तो ये हमें बचपन से हम देख रहे होते हैं, हम भी सीख रहे होते हैं। हाँ। हम भी इवन दूसरी सिटीज में ट्रैवल आई करके जाते हैं मीन अपने मुझे रिलेटिव्स तुम के लोग का लिए। नहीं पता, लेकिन मैं मेरी जिंदगी के अंदर मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि इन पर्सन ऑर्थोडॉक्स चीज़ें करनी है, तो मैं भी आई थिंक ऐसा हूँ कि ऐसे ही मैं है। प्रेफर करता हूँ कि मैं लोगों को जाके मिलूँ या मैं फ़ोन पे उनसे बात करूँ। टेक्स्ट मुझे इतना पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा वो टोन और वो इमोशन या जो भी चीज़ मैं तो कहने की ये कोशिश करूँ वो कन्वे नहीं हो ये सकती है ऐसे इमोशंस कि है जो इन बेसिकली। पर्सन या फ़ोन पे हो सकती है, ऐसे ही यू है। नो। तो मैं भी प्रेफर करता हूँ, जैसे तुम लोगों को मिलना आता हूँ तो ऐसे करके मिलना आता हूँ, ये नहीं कि हम लोग फेस टाइम पे नहीं, बैठे बिल्कुल, रहते हैं या टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे ही करते है। रहते हैं, कि मैं बस तुम लोग कहता हूँ चलो मिलते हाँ, हैं, चलो मिलते हैं, चाय शाय पीते हाँ, हैं, बैठ के बात करते बैठ हैं। के बात करते हैं, क्योंकि ये इन चीज़ है। पर्सन जैसे वो रेप्लिकेट नहीं हो सकता, वो बिल्कुल। रेप्लिकेट नहीं हो सकता कि यू नो। ऐसे ही है। और एक पेरेंट्स और बच्चों के अंदर ना एक यानी मतलब ओपनली वो बात नहीं करते, एक रिस्पेक्ट लेवल होता है। हाँ, लेकिन अब मॉडर्न वो डे है आज हेड के ऑफ द दिन में हाउस होल्ड, हाँ, दे कैन टॉक ऑन एवरी टॉपिक, इक्वल लगते हैं ना, हाँ, वो केयर ही नहीं करते कुछ हाँ। भी। लेकिन थोड़ा सा इसमें अगर मैं डबल एडवोकेट बनूं कि इसमें बुरी भी बात होती है कि बंदा बच्चे अपने इमोशन कन्वे नहीं कर सकते अपने पेरेंट्स ये को, भी है, बिकॉज उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। कॉन्फिडेंस है कि वो कहते हैं कि वो है घर का बड़ा बंदा बड़ा है, तो बंदा उनसे है। बात नहीं कर सकता, मैं तो बस बच्चा हूँ। नहीं, बट अगर बात करनी है रिस्पेक्ट वे में कर लो, हाँ, कोई इशू नहीं है। इसके ऊपर आई वांट टू ऐड, वो इसकी ये भी हाँ जी, सॉरी, इसकी ये भी बात है कि इमोशंस जब पेरेंट्स और बड़े नहीं कम्युनिकेट करेंगे तो बच्चों को नहीं आएगा कि वो हाँ, कैसे सीखेंगे? कम्युनिकेट करें। हाँ, नहीं, वो सीखने की बात तो वो एक एडवांस बात है। अच्छा, उससे पहले की बात उससे कर रहे पहले हैं। की अच्छा, बात है अच्छा, कि बच्चे ने कम्युनिकेट करना है। अच्छा, जब बच्चे को यही नहीं समझ आ रही कि वो जो है वो बात क्या करे, जब उसने इमोशन की बात करनी है हाँ, तो वो किस तरह बात करे, वो अपने हाँ, उसको साथ गुस्सा आ रहा हो लेकिन उसको पता नहीं है कि कैसे उसको मैं कन्वे करूं, कैसे कहूं, Exactly. तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं, वो उनके अंदर ही बिल्ड होता रहता है। हाँ। फिर जब वो अडल्ट होके बाहर जाते हैं दुनिया में तो वो निकल आता है ऐसा करके। एग्जैक्टली वो नहीं ना सिर्फ निकल आता है, वो एक खुन्नस बन जाता है। हाँ, वो अपना With पार्ट your हो जाता है, parents as well, हाँ, हाँ, I assume. हाँ, ऐसे ही है। बंदे का पार्ट बन जाता है ऐसे करके कि जब वो बाहर जाते हैं ऐसे चीजें करते हैं, ज्यादा गुस्सा करते हैं शायद, क्योंकि कभी उनको सिखाया नहीं गया कि इसको हैंडल कैसे करते हैं, कि जब गुस्सा है तो क्या करना है, कैसे उसको नेविगेट करना है, कि रो लो बेशक, ये कुछ नहीं कहते, बस कहते हैं कि कुछ नहीं कहते, ऐसे मैं कुछ खुद कहते ही नहीं है। मैं खुद ऐसा हाँ, स्कूल हाँ, लाइफ ये है कि में चुप मेरे में रहो। कॉन्फिडेंस इतना नहीं था। आई थिंक पाकिस्तानी कल्चर के अंदर भी ये है, ये there's है। a lot of Limited unspoken rules होते हैं कि बंदे की कुछ बिल्कुल। चीजें के कुछ सिचुएशंस में चुप बात रह नहीं जाता है करेगा, बंदा, चुप कि अपने अंदर ही रखता है। मैं खुद ऐसा आई मीन था बहुत start- बहुत चीजों के साथ हाँ। ये इशू है, डोमेस्टिक अब्यूज के साथ ये बहुत ज्यादा इशू है बहुत कि बस बड़ा चुप issue, रहो, बहुत Exactly. कुछ नहीं कहना, कहोगे तो तुम्हें बुरा करके तो- लगेंगे, हाँ। और ये नहीं कि जिसने किया उसको बुरा, जिसने बात की है उसके हाँ। बारे में उसको बुरा कहेंगे, लेकिन you know? अदर वे में अगर देखा जाए, अगर वो उस टाइम जवाब दे दे, मे बी अगला बंदा जो बड़ा है या रिस्पेक्टिव है, पेरेंट है, हाँ। उसको लगे कि ये बदतमीजी कर रहा है। बदतमीजी करे, लेकिन ये ये भी भी बुरी एक बात है, ये other मेरी way है, बात हाँ। थी, Yeah, हाँ, no, I agree. both ways, I completely you know? agree. हाँ। नहीं, I think कि both ways definitely, लेकिन I think कि ये भी जो है वो एक secondary बात है। ऐसे ही। पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ बात करनी है, बैठना है, और क्वालिटी टाइम यही होता है कि आप अपने इमोशंस को, अपने पास्ट को और अपनी चीजों को कम्युनिकेट करें हाँ। उनके साथ। जब वो कम्युनिकेशन आएगी तो बच्चे को भी पता होगा कि लेकिन यार मैंने इस तरह कम्युनिकेट तुम पहले ये कहते कि पेरेंट्स का ये होता है, एटलीस्ट फादर फिगर का ये होता है, Yeah. ऑर्थोडॉक्स थी या कि वो बाहर जाके काम करते हैं, 10-12 घंटे बाहर होते हैं, तो घर आते हैं तो बच्चे बेड में होते हैं या तैयार होने स्कूल जाना उन्होंने सुबह में, तो वो जो क्वालिटी टाइम होता है कम होता है, ऊपर से एडल्ट लाइफ में हम लोग को भी पता है कितनी चीजें करनी पड़ती हैं बंदे को। देखिए तो I वो- completely understand हाँ। that part, लेकिन जैसे if I'm looking at
Western culture, for example, just for a second, they spend like their weekends going football games or ये वगैरह. इस तरह की Quality activities, time, you know. exactly, you ऐसे need ही- that इवन sort दो of मैंने stuff. कुछ बच्चों को देखे जो शुरू से फुटबॉल वगैरह में नहीं होते, लेकिन बाय द टाइम दे आर टीनेजर वो डाई हार्ड फैन होते हैं बिकॉज उनके पेरेंट्स की वजह से, Exactly. फैमिली की वजह से, वो वो hobbies- बॉन्डिंग है. Yes. ये इसी लोग अपने टीम्स के ऊपर लोग से लड़ाइयाँ करते हैं, मारते हैं लोगों को, क्योंकि इट्स मोर देन जस्ट अ फुटबॉल टीम. वो It's a उनकी history. उनकी फैमिली आइडेंटिटी Yeah. है. ऐसे ही है. हमारी फैमिली आइडेंटिटी इन चीज़ों पे नहीं नहीं बिल्ड है. होती वहाँ है. पे यही है कि मदर नहीं बच्चों को ग्रो करना है, मदर नहीं हाँ. पालना है, मदर नहीं सारी हाँ. लुक आफ्टर करनी है. हाँ. क्यों आज डैड है स्टोइक बंदा, वो बिजी काम करना है, बिजी काम- करना है, काम बाहर से होना है, फोन पे होना है, ये वो होना है, यू नो. वो मेहनत कर रहा है अपने मेहनत बच्चों कर के रहे लिए. हैं. लेकिन चाहिए ऐसा कि उसे एक दिन कम से कम एक वीक में निकाल ले कम से हाँ. कम, या फिर काम 12 घंटे ना करे, 8 घंटे करे, अपने बच्चों को टाइम दे, हाँ. उनके साथ टाइम स्पेंड करे, उनके साथ आउटिंग करे, और वो एक लेवल बिल्ड करे कॉन्फिडेंस का कि बच्चे बात कर सके, हाँ. I शेयर think कर कि सके अपने वो बात भी ठीक है, 8 से 12 घंटे ये वगैरह. आई थिंक कि एक और चीज भी की जा सकती है, फूड्स, मतलब कि लंच डिनर का कोई टाइम. हाँ, ऐसा कोई टाइम निकालो बच्चों कोई को. चीज़ करें. जैसे कि मैंने स्कूल में देखा है कुछ बच्चे आई मीन करते हैं ऐसे करके, पेरेंट्स आते हैं लंच टाइम पे, उनको ले जाते हैं, वो जाके बाहर ये वो करते हैं, फिर उनको वापस स्कूल ड्रॉप करते हैं, या वो उनको दिन के लिए हाफ डे के लिए ले जाते हैं बाहर, आओ चलो कोई चीज़ करते हैं. यू नो, ये एफर्ट जो है इस पार्ट में, ये नहीं मैं कह रहा कि एशियन पेरेंट्स नहीं करते, एशियन पेरेंट्स एफर्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा मामूली उसमें आई थिंक अजीब सा कोई स्टांस है, क्योंकि वो अपने लिए भी उनके लिए बेहतरी है कि वो काम ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा पैसे उनके पास आएंगे, ज़्यादा चीज़ें वो भी कर सकते हैं. आपको पता है वो हाँ. तपे हुए होते हैं, गुस्से तपे में हुए होते होते हैं, हैं. बच्चा खुद गिर गया गलती से तो उसको फेंटा लगा देंगे. हाँ, कि क्या कर तो रहे हो, बच्चा आगे से क्या सीखेगा? क्या सीखेगा, कहेगा मेरी गलती है उसके सारा अंदर कुछ. वो चीज पैदा होगी कि यार मैं तो गलती से हाँ, गिरा. कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगी. कुछ नहीं हाँ. होगा. मैं वो इसके दब ऊपर के रहेगा. ऐड करना चाहता था कि मुझे क्योंकि वो एक उससे रियलाइजेशन हुई कि ये चीज़ आती है माइंडफुलनेस. हाँ. माइंडफुलनेस और ये प्रैक्टिस के खुद के बारे में सोचना और खुद के बारे में जो है वो देखना कि यार मैं सराउंडिंग्स हाँ, रिकग्नाइज करनी है चीज़ें ना. हाँ. वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. अगर आप 5 मिनट भी कर लें वो हाँ. अपने दिन के अंदर अपने बच्चों के साथ ये वगैरह, तो आई थिंक कि वो पेरेंट्स के साथ एक डीपर कनेक्शन, बहुत डीप कनेक्शन डेवलप होगा. हाँ. और वो लेकिन अच्छी ये आई थिंक ये थोड़ा सा जैसे walking. हाँ, इसका थोड़ा सा नॉक ऑन इफेक्ट है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं हमारे एज वाले, हमारे एज के पेरेंट्स जो होंगे, तो सॉरी नहीं, हमारे पेरेंट्स के एज के जो लोग हैं, वो जिस तरीके से वो ग्रो अप हुए हैं कि उनके पेरेंट्स ने कभी उनके साथ ये नहीं किया, फिर उनके पेरेंट्स ने कभी वही इसके ना, साथ नहीं फोर किया, फादर से चलता आ फोर रहा है. फादर से. तो आई थिंक आजकल की जो हमारी कम्युनिटी, आप लोग का मैसेज है कि अगर आपके अंदर, आपको अपने बारे में सबसे बेहतरीन पता है, आपको अगर पता है कि मेरे अंदर कुछ खराबियां हैं जो मैंने डेवलप की हैं मेरे पास से या जो भी है, इट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी कि आप उसको रिकग्नाइज करो और अपने बच्चों को ना ये दो, क्योंकि आप अगर रियली चाहते हो कि बच्चे अच्छे हों, उनका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए. बाकी सारे कुछ लोग जो माइंडसेट उनका बुरा होता है वो खुश कभी होते नहीं है. सक्सेस होएगा उनके पास, ये वो होएगा, वो चीज़ें को चेस करेंगे, ढूंढ रहे होंगे, लेकिन जब सारा कुछ चुपचाप होएगा दिमाग में वो चीज़ें होंगी कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं अच्छा, हूँ. I just wanted to pose a question from that because a lot of times होता ये है कि आपका माइंडसेट आपके पेरेंट्स के साथ वगैरह नहीं सेम होता. हाँ. ठीक है, वो होना ज़रूरी नहीं है. मेरे सिबलिंग्स के साथ मेरा माइंडसेट जो है वो मैच नहीं होता. हाँ, मेरा भी जनरेशन गैप है ना. वो जनरेशन जनरेशन गैप के अलावा कभी कभार you've had different experiences, हाँ. ऐसे ही. it just doesn't match. तो उस सिचुएशन के अंदर जब आपका माइंडसेट नहीं मैच होता, फिर क्या किया? आई थिंक फिर यू नो, ये मैंने पिछले भी पॉडकास्ट में एक चीज़ कही थी कि दिस इज़ दैट टाइम अपने ज़िंदगी के अंदर जो हर बंदे के पास आएगा कि डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ती हैं. गॉड नोज मुझे करनी पड़ी हैं, पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है, भाइयों बहनों से बात करनी पड़ती है कि मैं इस तरह नहीं सोचता. उनके कुछ व्यूज़ होंगे, उनके कोई तरीके होंगे करने के लिए जो तुम्हारे साथ नहीं चलते. इट डजंट सिट विद योर बॉडी राइट, कि तुम अजीब फील करते हो या अनकम्फर्टेबल फील करते हो, या बस वो आप उस जोन में नहीं हो कि मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, यू नो, मैं अपने तरीके से जा रहा हूँ. यहाँ पे मुश्किल कॉन्वर्सेशन, लड़ाइयाँ होंगी, शायद बात नहीं होंगी आपकी अपने पेरेंट्स से, क्योंकि आप अपने बिजनेस पे स्टैंड करो, लेकिन आपका ये है अडल्ट का पार्ट है कि आपने बात करनी है और उनको समझाना है. एटलीस्ट कि अगर आपको एग्री नहीं करते, समझेंगे तो सही कि तुम कहाँ से आ रहे हो. ऐसे ही. ये लेकिन बहुत मुश्किल बात होती है, क्योंकि पेरेंट्स, स्पेशली ऑर्थोडॉक्स पेरेंट्स जो पुराने जनरेशन से, वो
उसी stuck वो line होते पे हैं चल कि रहे हैं वो mindset पे, और लकीर के फकीर। क्योंकि वो सक्सेस उनके उसी माइंडसेट से आया है, तो इसमें मैं डिफिकल्ट होता है एक चेंज ऐड करना। करना चाहूँगा एग्जांपल, हाँ लाइक जैसे दादाजी हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहेंगे उस अपने बेटे को कि तुम भी इसी को करो। हाँ वो उससे बच्चे जो आगे होते हैं उनको भी बोलेंगे उसी को करो, उसी को मतलब करो। उनकी कोई चॉइस नहीं है। हाँ। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो माइंड में आप उनके ये फीड कर रहे हो। उनको बच्चों को लाइक अपने लिए सोचना चाहिए। हाँ, और ये exactly. आपको एज अ पेरेंट, बिल्कुल। अगर आप अभी पेरेंट हैं, यंग पेरेंट हैं, तो आपने अपने बच्चों में ये डालना है कि खुद ही के लिए सीखो, बिल्कुल। क्वेश्चन करो चीज़ों को कि क्यों ये चीज़ें हैं, बस ब्लाइंडली ना फॉलो करो अपने आप को। और अगर आपके अंदर ये बुरी है चीज़, तो इसको रिकग्नाइज करो और ट्राई करो कि इवन इफ़ यूर 30 40 whatever, इसको चेंज करने की कोशिश करो, यू नो, कि अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि फ्रीली चीज़ों को देखो और अपना खुद ही ओपिनियन फॉर्म करो किसी चीज़ का, इंस्टेड ऑफ रिलाइंग कि किसी बंदे ने क्या कहा है, क्योंकि आप उनको यू नो। आई थिंक दैट्स द की पॉइंट। आपको जो है वो अपने यही क्वालिटी टाइम के दौरान, आई थिंक जब पेरेंट्स या फैमिली क्वालिटी टाइम हो रहा है, It's important to teach the children or the young people that they need to learn how to form their own opinion हाँ। and in the right way. हाँ हाँ क्योंकि the internet, हमने उधर से बात जब शुरू की थी, हाँ, बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ कुछ है। है। I mean, बिल्कुल अनफिल्टर्ड कंटेंट आप उस पे बच्चों की तरह आप कर सकते हो। and it's not free unfiltered content. हाँ। It's more like Void वो है। western narrative भी Western चलता है बीच narrative में, है। और वो void वाली को- चीज भी है, हाँ। क्योंकि आप एंडलेस, मतलब Yeah. एंडलेस है, मतलब आप पूरा दिन लगा सकते हो एंड यू वोंट इवन टच 0.1% ऑफ द Yeah. इंटरनेट, यू नो। and the louder voices are हाँ। always जो प्रमोट louder. की जाती हैं, जो सर्टेन कैपिटलिस्ट गेन होती हैं कुछ कंपनीज की, उनको ज्यादा पुश किया जाता है, तो वो पर्सपेक्टिव आ जाता और है। वो अब तो रेसिज्म भी पुश किया जा रहा है, जो भी है, यू नो। लेकिन आपकी ये सोच है, लाइक इज दिस रियली व्हाट यू बिलीव? मतलब आप Yeah. ग्रेव में जाओगे इसको सोचने के लिए, आपने खुद ही इसके बारे में कभी सोचा है या नहीं सोचा? एग्जैक्टली बस बताया गया है। एग्जैक्टली और आपको ये ब्लाइंड बिलीफ वाली चीज, अभी ये देखो कितना आयरॉनिक है कि बचपन से लोगों को बताया गया है कि ऐसे करो, फिर इंटरनेट पे आके Yes. वही चीजें पुश की जाती हैं Yes. कि ये पता है तुम्हें यही सोचना चाहिए। यस तो बंदा कैसे उसको यू नो ब्रेक आउट कैसे करेगा? Yeah. ये मेरा क्वेश्चन आप दोनों को कि उसको ब्रेक आउट कैसे करोगे कि अगर आप लोग इस तरह के सिचुएशन में हो। Sorry, you asked me a question. मेरा क्वेश्चन था कि हाउ डू यू ब्रेक आउट ऑफ दिस साइकिल के बचपन से बच्चों को बताया गया कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ें तुम्हें सोचनी चाहिए, फिर ऊपर से आते हैं इंटरनेट पे और ये चीज़ें पुश की जाती हैं कुछ के तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो, तुम ऐसे सोचो। हाउ डू यू ब्रेक आउट? ये डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अपने साथ कैसे बंदा करे? I think कि सबसे ज़्यादा important, that's the point. A parent, that's where a parent can play in. या elder sibling can play in. ये आपको जो है वो शायद कुछ लोगों के लिए सोसाइटी सिखाती है, टीचर सिखाते हैं उनको, लेकिन if we're talking about family, उधर जो है वो a family person needs to sit down with a younger person and needs to be like कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं ऐसा सोचता था एक टाइम के ऊपर, अब मैं इस तरह सोचता हूँ, एंड चेंज इज ओके, बिकॉज दैट चेंज इज ओके वाली चीज। तुम कह रहे हो कि बच्चों को ये कहना हाँ, चाहिए बच्चे को तो काफी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन कि आपके जो भी बिलीफ हैं वो चेंज हो सकते हैं, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। अच्छा, आपके एक्सपीरियंसेस दे आर द थिंग्स दैट डिफाइन यू। ह्यूमन वरना बंदा नहीं होएगा अगर चेंज नहीं करोगे, तो तुम रोबोट तो नहीं हो ना। लर्निंग हाँ, एवरी डे दी चीज वही पे अब वही पे चलना है, ये नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। यू नो, आपको लर्न, यू हैव टू गो इन विद अ माइंडसेट कि आप जो है वो हर रोज लर्न करने कुछ चीज क्वेश्चन करो, कुछ क्या है? क्वेश्चन करो, हाँ, और क्रिटिकली सोचो, क्योंकि आप जो है वो जो भी चीज आपके सामने आ रही है, आप इस तरह ही उसको ऑन द फेस वैल्यू ऑफ थिंग्स आप उसको बिलीव नहीं कर सकते हो। एवरी न्यूज, every article, everything has a agenda, because every person has an agenda, they have a bias, so it needs to be discussed and it needs to be studied. मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेस को देखना Exactly. चाहिए, अपना फिर Exactly. आपको क्या लगता है इसी पे? मेरा भी सेम ही पर्सपेक्टिव है हाँ। इसके बारे में, लेकिन मैं अब पॉइंट पे वापस आना चाहता हूँ जहाँ से कॉन्वर्जेशन शुरू हाँ हुई जी, थी। हाँ जी। हाँ, उसमें ये आपने कहा था ना कि पेरेंट्स के बारे में, हमारा रिलीजन भी हमें यही सिखाता है कि माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उनकी ऐसे लुक आफ्टर करो जैसे उन्होंने तुम्हारी बचपन में की थी। तो हमें उसको फॉलो करना चाहिए। किसी की बेशक आप बाहर आ गए हो, जहाँ पे भी रहते हो, पेरेंट्स इज पेरेंट्स, उनकी लुक आफ्टर। ये तो यू नो भूल नहीं सकता, फर्ज है आपका। स्पेशली जिसने स्टोरी अंदर भेजी है। थैंक यू फॉर सेंडिंग इट बाय द वे।
भूलना नहीं चाहिए पेरेंट्स को, बिकॉज उसके उनके बजाय जहाँ तुम अभी पैर रख रहे हो वहाँ पैर भी नहीं रख सकते थे तुम वहीं बैठे होते जहाँ वहाँ थे, पता नहीं गॉड नोस कि तुम कहाँ पे जिंदगी में पहुँच सकते हो। ये रिकग्नाइज करना चाहिए एंड यू शुड बी वेरी अप्रिशिएटिव बिकॉज दे डोंट ओ यू एनीथिंग। वो अपनी मर्जी से भी कर सकते थे जिंदगी में, उन्होंने चूज किया सैक्रिफाइस, और इसको रियलाइज करो। And all you guys that are watching, hopefully you realize this too, and hopefully you guys can have some difficult conversations with your parents or with a partner or with a brother or sister or anything, or even just your friends. You know, if there's certain things you don't agree with your friends, have these difficult conversations. God knows we've had some difficult conversations, you know, and it's always for the better. You understand people better, deeper connections, everything will get better. And I'm going to leave you guys with that. Thank you for watching the season finale. We'll see you guys for season 2, and thank you very much for watching. Like and subscribe. Thank you guys.